کہ خداوند میں ہر وقت خوش رہو. پولس رسول کہتے ہیں کہ پھر کہتا ہوں کہ خوش رہو. کڑکڑانا اور بڑبڑانا شروع کر دیتے ہیں اور جی ساڈی زندگی چ تے کوئی خوشی نہیں لکھی جی اسی تے مایوسی دا شکار ہاں, اچھی چیز ساڈے نال ہو نہیں سکتی. مطلب بہت ساری ایسی باتوں میں کڑکڑانا اور بڑبڑانا شروع کر دیتے ہیں, اپنی ذات کو کوسنا شروع کرتے ہیں. ہم لوگوں نے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, دنیاوی چیزوں کو اپنی خوشی کا باعث بنا لیا ہوا ہے. خود اپنی زندگی سے اداس رہ کر, مایوس رہ کر اور پریشان رہ کر ان برکتوں کو اپنے سے دور رکھا ہوا ہے. اور آج کا انسان تو پریشانیوں اور غمگینیوں میں خدا کے آگے جھکتا بھی نہیں, پریشان بھی نہیں ہوتا, پورے ایمان سے کہ خداوند میں جانتا ہوں تو میرے ساتھ ہے, تو میرے ساتھ ہے. خداوند یسوع مسیح آپ میرے ساتھ ہیں, آپ میرے ساتھ ہیں, آپ میرے ساتھ ہیں. میری پرابلم لمحہ پر کی ہے, لمحہ بھر کی ہے. میری سچویشنز لمحہ بھر کی ہے, اور یہ میری سچویشنز میرے سامنے کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ اس مشکل سے بڑا میرا خدا. اور خداوند ان کے دلوں کو, ان کی زندگیوں کو شاد کیجیے, بلس کیجیے, برکت دیجیے مسیح کے نام سے. آمین. پریز دی لارڈ. خداوند آپ کے ساتھ ہو. آمین. دیاں گلاں یسو جان پا دیندیاں, تیرے کلام دیاں گلاں یسو جان پا دیندیاں. پریز دی لارڈ. ہاللیلویا. مسیح یسوع کا برکت اور جلالی نام میں آپ کی سلامتی ہو. میں مسز آکاش گیل ایک بار پھر آپ کے ساتھ کلام کی ایک خوبصورت بات کو لے کر, جو ایمان رکھتی ہوں کہ آپ کی زندگی کے لیے, آپ کی فیملیز کے لیے بہت بلیسنگ اور برکت کا باعث بنے گی. ہم دعا کرتے ہیں اور کلام کی خوبصورت بات کو جو خداوند نے ہماری زندگیوں میں رکھی ہے اس کو جانتے ہیں. خدا یسوع مسیح کے پاک لہو میں اپنی ذات کو کور کرتی ہوں. خدا باپ میں دعا کرتی ہوں کہ میری زبان سے جو بھی الفاظ کلام سے متعلق ان زندگیوں کے لیے نکلیں, وہ سننے والی زندگی کے لیے بڑی برکت کا باعث بنے, میری اپنی زندگی کے لیے بڑی برکت کا باعث بنے, مسیح کے نام سے. آمین. ڈیئرز, آج کلام مقدس میں سے فلپیوں 4:4 میں سے ایک بہت خوبصورت بات جو جس پہ میں خود بہت زیادہ عمل کرتی ہوں, کلام کی اس بات پہ جو مجھے بہت زیادہ تقویت دیتی ہے اور بہت زیادہ اچھی لگتی ہے, وہ ہے فلپیوں 4:4 میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند میں ہر وقت خوش رہو. پولس رسول کہتے ہیں کہ پھر کہتا ہوں کہ خوش رہو. یہ ورس میری ذات کے لیے, میری زندگی کے لیے بہت تقویت کا باعث ہے. جب بھی کسی بھی قسم کے میری زندگی میں سرکمسٹانسز ہوتے ہیں, حالات چاہے کیسے بھی ہوں, بیماری میں ہوں یا پھر کسی بھی قسم کی تنگ دستی میں انسان گزرے, تو یہ ورس میری زندگی کے لیے بہت تقویت دیتی ہے. پھر سے ورس کو پڑھیں گے فلپیوں 4:4 میں کہ خداوند میں ہر وقت خوش رہو. پھر کہتا ہوں کہ خوش رہو. یعنی کہ پولس رسول اس جگہ پر بیان کرتے ہیں کہ ہر وقت خداوند میں ہمیں ہماری زندگی میں خوش رہنا چاہیے. میں نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو مسیح میں ایمان رکھتے ہیں, مسیح میں اپنی زندگی کو گزارتے ہیں, فاسٹنگ میں ٹھہرتے ہیں, کلام کو ڈیلی پڑھتے ہیں اور خدا میں اپنا بڑا پختہ ایمان رکھتے ہیں, لیکن ذرا سی ان لوگوں کے اوپر جب بھی کچھ بھی پریشانی تکلیف آ جاتی ہے تو وہ فوراً ہی ان کا جو ایمان ہے وہ ڈاؤن ڈول ہو جاتا ہے. وہ اپنی مشکلات کو لے کے اس قدر پریشان ہو جاتے ہیں, اس قدر نڈھال ہو جاتے ہیں, چہرہ جو ہے وہ فل اداسی والا بنا لیتے ہیں کہ جیسے کہ وہ جانے کتنی ہی زیادہ جو ہے وہ پریشانی کا شکار ہو چکے ہیں. تو میں آپ سے یہ کہوں گی, مطلب کہ میں ان لوگوں سے اکثر کہتی ہوں, میری زندگی میں جو ایسے لوگ ہیں, میرے جو ڈیئرز ون ہیں, میرے عزیزی قریب ہیں, جب میں لوگوں کو پریشانی میں دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں پھر آپ ایک سچے مسیحی نہیں ہیں. جو لوگ پریشان ہوتے ہیں میں ان کو کہتی ہوں کہ یعنی کہ پھر آپ ایک سچے مسیحی نہیں ہیں, کیونکہ مسیح یسوع نے کہا ہے کہ اپنی سب فکریں مجھ پر ڈال دے کیونکہ مجھے تیری فکر ہے. مجھ سے میرا نرم جوا لے لے, اور نرم اور ملائم جوا لے لے. خدا نے کہا ہے کہ تم فکر کر کر اپنے بالوں کے جو آپ کے جو بال ہیں اگر وہ سفید ہو جائیں تو اس کو سیاہ نہیں کر سکتے. کلام مقدس میں خدا نے کہا ہے کہ کیڑوں کو دیکھو, سوسنوں کو دیکھو, اگر وہ مطلب چرند پرند کو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تو کچھ, ان کا تو کوئی روزگار نہیں ہے, خدا ان کو ہر ایک چیز پرووائڈ کرتا ہے. کلام میں لکھا ہے کہ اگر تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو میں تو تمہارا آسمانی باپ ہوں کہ تمہیں اچھی چیزوں سے کیوں نہ سیر کروں گا. اور
हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी ब्लेसिंग्स हैं अजीज़ों, जो हम उदास और मायूस होकर उन चीज़ों को गवा देते हैं। मैं जब सख्त कोफत होती है, मुझे यकीन जाने सख्त गुस्सा आता है मुझे उन लोगों पर जब वो मसीह में होते हैं, जो मसीह में अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे होते हैं, लेकिन ज़रा सी परेशानी होती है तो वो कुड़कुड़ाना और बुड़बुड़ाना शुरू कर देते हैं। और जी साड़ी ज़िंदगी च ते कोई खुशी नहीं लिखी जी, असीं ते मायूसी का शिकार हाँ, अच्छी चीज़ साढ़े नाल हो नहीं सकती। मतलब बहुत सारी ऐसी बातों में कुड़कुड़ाना और बुड़बुड़ाना शुरू कर देते हैं, अपनी ज़ात को कोसना शुरू कर देते हैं कि मैं तो मर ही जावां तो बेहतर है, नहीं ना इंज हो जाए तो बेहतर है, मेरी ज़िंदगी च कोई खुशी नहीं आ सकती। मतलब बहुत सारे मतलब ऐसे मैंने देखे हैं, कुछ लोग हैं ना बहुत बुड़बुड़ाते हैं, बहुत कुड़कुड़ाते हैं। और ऐसे भी लोग देखे हैं जो दूसरों की तरक्की पर जो है ना सड़ते हैं, कुड़कते हैं, जो दूसरों की बहाली पर सड़ते हैं, जो दूसरों की बरकतों को देखकर सड़ते कुड़ते हैं। मैं लोगों से आज यही कहना चाहूंगी कि आप खुश रहना सीखें। कलाम में लिखा है कि खुदावंद में हर वक्त खुश रहो। फिर कहता हूँ कि खुश रहो। एक पॉइंट यहाँ पर ये भी आता है कि हमारी जो ब्लेसिंग्स हैं, हमारी जो बरकतें हैं, हमारे ऊपर क्यों जाहिर नहीं है। फर्स्ट पॉइंट कि हमने लोगों की ब्लेसिंग्स को देखकर जलना और कुड़कुड़ाना शुरू कर दिया है। और इस चीज़ का ज़िया ये है कि हमारी जो अपनी बरकत है, हमारे हिस्से की जो अपनी बरकत होती है, हमारी वो हसद से, हमारी उदासी से, हमारी मायूसी से, वो हमारी ज़िंदगी में हमारी उस बरकत का ज़िया हो जाता है, वो ख़त्म हो जाती है। और दूसरा ये है कि हम लोगों ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, दुनियावी चीज़ों को अपनी खुशी का बायस बना लिया हुआ है। जैसे कि जी हम अच्छा पहनेंगे, अच्छा खाएंगे तो यही हमारी बरकत है और यही हमारी खुशी है। हमारे पास घर होगा तो यही हमारी खुशी है। हमारे पास अच्छी व्हीकल्स होंगी, अच्छी गाड़ियाँ होंगी तो वही हमारी खुशी है। और जी हमारा दिल शादमान है तो यही हमारी खुशी है। वो फलां शख्स मेरे से अच्छे से बात करे, अच्छे से पेश रहे तो वो मेरी खुशी है। और हमारी फैमिलीज़ के चंद मेंबर्स हमारे साथ अच्छे से रहें, यही मेरी खुशी है। हमने अपनी खुशियों को जो है ना दुनियावी चीज़ों में महदूद करके रख दिया, जिसकी वजह से वो जो हकीकी इत्मीनान है, जो हकीकी सुकून है, हकीकी तसल्ली है, जो हकीकी बरकतें हैं, जो पायदार बरकतें हैं, जो पुख्ता बरकतें हैं, जो हमारी ज़िंदगी से कभी भी जा नहीं सकती हैं, वो हमने खुद अपनी ज़िंदगी से उदास रहकर, मायूस रहकर और परेशान रहकर उन बरकतों को अपने से दूर रखा हुआ है। तो कलाम में लिखा है कि खुदावंद में हर वक्त खुश रहो। फिर कहता हूँ कि खुश रहो। अगर हम मत्ती उसके 5 चैप्टर की 5 वर्स को देखें तो मुबारकबादियों में खुदा यीशु मसीह ने कहा है, मुबारक है वो जो गमगीन है क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। हमारा जो गम है, हमारी जो परेशानी है, हमारी जो तकलीफ है, उसको भी खुदा ने मुबारक कहा है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि मैं अपनी कमज़ोरियों में ही ज़ोरावर हूँ। जो हमारी कमज़ोरियाँ हैं, पौलुस रसूल कहते हैं, जो हमारी कमज़ोरियाँ हैं वो हमें खुदा से जोड़ती हैं। हमारी जो परेशानियाँ वो हमें खुदा से जोड़ती हैं, क्योंकि मैं परेशानियों में अपने खुदा को, अपने मसीह को याद करता हूँ। और मेरी रफ़ाकत जब खुदा के साथ होती है, दुखों में होती है, जब हम दुखों परेशानियों में उसके क्लोज जाते हैं, उसके पास जाते हैं, तो हम एक नई तक़वियत को पाते हैं, एक नई कुव्वत को पाते हैं। और वही कुव्वत हमें हमारी परेशानियों पर गलबा लाने का बायस बनती है। लेकिन जब हम इंसान ने दुनियावी चीज़ों को खुशी का बायस बनाया हुआ है और वो जब हमसे जुदा होती हैं, और आज का इंसान तो परेशानियों और गमगीनियों में खुदा के आगे झुकता भी नहीं, परेशान भी नहीं होता, खुदा के आगे गिरिया वजारी भी नहीं करता है, खुदा के आगे झुकता, अपने पॉइंट को, अपनी बात को भी नहीं रखता है। बस वो कुड़कुड़ाता रहता है, बुड़बुड़ाता रहता है, परेशान होता रहता है। मुझे सख्त कोफत होती है ऐसे लोगों पर। और मैं कहती हूँ कि वो मसीही नहीं है जो दुनियावी चीज़ों को खुशी का बायस बनाया हुआ है। और वो जब हमसे जुदा होती हैं, और आज का इंसान तो परेशानियों और गमगीनियों में खुदा के आगे झुकता भी नहीं, परेशान भी नहीं होता, खुदा के आगे गिरिया वजारी भी नहीं करता है, खुदा के आगे झुकता, अपने पॉइंट को, अपनी बात को भी नहीं रखता है। बस वो कुड़कुड़ाता रहता है, बुड़बुड़ाता रहता है, परेशान होता रहता है। मुझे सख्त कोफत होती है ऐसे लोगों पर। और मैं कहती हूँ कि वो मसीही नहीं है जो परेशानियों में खुशी नहीं रहता। यकीन करें, जब हम खुदावन में खुश रहते हैं, आप कलाम को पढ़ें, आप खुदा के साथ डेली की रफ़ाकत को रखते हैं, और खुश किस तरह रहा जा सकता है। दुनियावी चीज़ों के अलावा हम मसीह में किस तरह खुश रह सकते हैं। हम मसीह में इस तरह खुश रह सकते हैं कि हम डेली बाइबल को रीड करें, हम डेली खुदा के साथ रफ़ाकत रखें। और जब हम खुदा के साथ डेली रफ़ाकत रखेंगे, हम खुदा कलाम को पढ़ेंगे, तो यकीन करें खुदा अपना इत्मीनान जो सारी तसल्ली से बाहर है, जो सारी इंसानी समझ से बाहर है, वो हमको देता है। यकीन करें, अब जब खुदावंद के साथ अटैचमेंट अपनी रखते हैं ना हम, तो खुदा अपनी ज़ात के अंदर से वो तसल्ली हमारे दिलों में, हमारी ज़िंदगियों में डाल देता है।
हमारे रूह जब बदन में डाल देता है तो वो जो तसल्ली है ना, वो हमें हमारी गमगीनियों में भी खुश रहने की तकवीत हमें देती है, हमारी परेशानियों में खुश रहने की तकवीत देती है। हमें जब हम दूसरों को बहाल और कामयाब और सरफराज हुआ देखते हैं तो हमें इस चीज़ को ये नहीं कि ओ जी ऐते बहुत सरफराज हो गए, कामयाब हो गए, उस चीज़ से हसद करने नहीं देती। जो मसीह में खुश रहते हैं, जो लोग मसीह में खुश रहते हैं, वो दूसरों की कामयाबी पे हसद नहीं करते, वो कुड़कुड़ाते नहीं है, बल्कि वो कहते हैं कि मेरे खुदा ने मुझे इससे ज़्यादा ही दिया हुआ है और जो चीज़ की मेरी ज़िंदगी में कमी है खुदा वो मुझे नवाज देगा। और वो लोग जो परेशान और उदास होते हैं, मैं इस चीज़ को कहती हूँ कि वो मसीह पर ईमान नहीं रखते। यकीन करें, आपकी लाइफ में परेशानियाँ आती हैं, मुश्किलात आती हैं, तो मसीह में खुश हुआ करें, मसीह में शादमान रहा करें। हमारी शादमानी उन परेशानियों को, उन तकलीफ़ों को हमसे अलग और जुदा कर सकती है। फिर से यही बात कहूँगी कि खुदावंद में खुश रहो, हर वक्त खुश रहो। फिर कहता हूँ कि खुश रहो, खुश रहना सीखिए अपनी लाइफ में, चाहे कुछ भी सर्कमस्टांसेस हो। पूरे मान सके कि खुदावंद मैं जानता हूँ तू मेरे साथ है, तू मेरे साथ है। खुदावंद यीशु मसीह आप मेरे साथ हैं, आप मेरे साथ हैं, आप मेरे साथ हैं। मेरी प्रॉब्लम्स पर लम्हा पर की है, मेरी सिचुएशंस लम्हा भर की है, और ये मेरी सिचुएशंस मेरे सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरी इस मुश्किल से बड़ा मेरा खुदा है और वो मेरी लाइफ में बड़े बड़े अजीम काम करता है। वो बड़ी बड़ी गवाहियों को मेरी लाइफ में खड़ा करता है और मैं अपने मसीह में खुश हूँ, चाहे मेरी ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए। आपकी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी है, फिर भी खुदा के हुजूर खुशी से रहे। आपकी लाइफ में कुछ भी सिचुएशंस हैं, खुदावंद के हुजूर खुशी से रहे। यकीन करें, मेरा और आपका खुदा आपकी सारी लाइफ्स को, आपकी सारी प्रॉब्लम्स को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देगा, सिर्फ आपके एक रवैये से। और उस रवैये का नाम है कि आपने हर सिचुएशंस में खुश रहना है, हर हालत में आपने खुश रहना है। आइए दुआ करेंगे। और प्रेज द लॉर्ड जीसस। खुदा यीशु मसीह मैं दुआ करती हूँ इन जिंदगियों के लिए, इन जानों के लिए, इनकी लाइफ में जितनी भी सिचुएशंस हैं, आज यीशु के नाम से मैं आउट करती हूँ और खुशी को, ब्लेसिंग को, बरकत को मैं यीशु के नाम से इनकी लाइफ में मांगती हूँ। और खुदावन इनके दिलों को, इनकी जिंदगियों को शाद कीजिए, ब्लेस कीजिए, बरकत दीजिए मसीह के नाम से। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन आपके साथ हो। आमीन।